Assalamualaikum. I'm Nida Wahid, final year MBBS student in King Edward Medical University and a member of the student-based psychiatric group, ChemPsych. Today we have Dr. Umar Rashid as our guest speaker, so let me introduce him first before going any further. Dr. Rashid is a consultant psychiatrist at NHS Ayrshire and Erin. He did his MBBS from King Edward Medical University, and it's so good to have another Cambodian here today with us. Dr. Rashid did his psychiatry training in UK. His interests include genetics, clinical research, and other different aspects of psychiatry. So, sir, on behalf of ChemPsych Group and other colleagues, I welcome you to this amazing platform and look forward to your expert opinions and guidance today and in future. It's a huge pleasure to have you here. अच्छा सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं मुझे जिस टाइम के ऊपर कांटेक्ट किया था मैंने कहा आई एम रियली ग्रेटफुल because it's a great initiative. I wish that we had the opportunities of actually doing the same when I was in King Edward Medical College. Um, so as you have introduced, my name is Dr. Umar Rashid, and I am a graduate of King Edward Medical College, year 1999 2000. We were in final year in 99 and our final professional result came in 2000. So whatever session you want to put me in, it doesn't make much of a difference. I know that we had our 20 years anniversary in December of 2019 when I incidentally well, that was my last visit to Pakistan, unfortunately, because we've been stopped from visiting since. Um, I sort of my journey is actually about what I said was to Yoshe as well, that I'm actually more than happy for you to interject and ask the questions as we go along, because I don't believe in actually having any fancy slide presentations. I was never interested in them myself when I was at your stage. Anything more than 4 or 5 slides, and I used to lose my interest. I have considered retrospectively now diagnosing myself with an ADHD, but I think that that was mostly to do with the fact that I believe that those slides were useless after 5 or 6. So I don't believe in slides, but I'm just going to say that um, I got my admission into King Edward Medical College, I think in 94, 95, finished in 99, 2000. And after that, I did my house job in Mayo Hospital as well for a year, 6 months in surgery, South Surgical Ward, and then 6 months in medicine. Professor Mumtaz used to be our principal as well as the head of the East Medical Ward in those days. So once I finished my first year of medical college, so first year of house job, I knew that I'm going to come to Britain for my psychiatric training. If you're going to ask me when I decided to actually become a psychiatrist, it was when I was in fourth year of my medical school. And I think I was, you know, how we have these, I don't know whether that's still the case or not, but उस टाइम के ऊपर एक एक महीने की हमारी जो थी वो 4 weeks का slot होता था. You used to spend that in different sort of specialities. मेडिसिन और सर्जरी में लंबे स्लॉट्स होते थे, 2 2 3 3 महीने के, मगर साइकेट्री, डर्मेटोलॉजी एंड प्रोबेबली चाइल्ड मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स वगैरह में 4 4 weeks का स्लॉट होता था. So I quite clearly remember actually working with Dr. Aftab, who was your professor till about 2 years ago when I visited, 2 3 years ago, because I actually did a presentation at King at Mayo Hospital about 3 years ago. I think about 3 years ago, it may be longer than that, but he was the professor at the time, and Dr. Hotiana was the assistant professor. I know that he's one of the other presenters very soon. So I did the. I remember that Aftab Saab used to be the assistant professor at the time when I actually was a medical student. And I think that I said it to him 4 years ago as well. I always give, you know, most of the credit for me becoming a psychiatrist to Dr. Aftab, because after spending time in medicine, surgery,
and some of the other specialities with other consultants or professors or assistant professors, as we are used to calling them in Pakistan. Working with Aftab was an amazing experience because he was his bedside manners, his interaction with the medical students was so friendly and open and two-ended. And that, I thought that, I want to be like him if I become a doctor at one point in my life. I never thought that, whether psychiatry as a specialty, it is nice to be in it and all the rest of it. But I think that his mannerisms and his bedside sort of technique of interacting with the patients was the thing which basically pushed me more in that direction, I would say. So yeah, that 1 month was probably the make or break for me when it comes to psychiatry. There was other reasons as well. I'm not going to say that was the only reason. So I had my one of my uncles, my mother's brother. He suffered from very severe depression all his life, and he actually successfully committed suicide when I was in fourth or final year of my medical school, which was a huge surprise for me because he was an extremely talented young man, topped the engineering university and was an amazing human being in all aspects. So, it was very difficult for me to actually understand that how it happened and why it happened. Um, so I thought that, you've got, even in those days, we had great surgeons, physicians, neurologists, and all the rest of it. But there was not a great psychiatrist. I mean, you would have heard names of Professor Tareen and all the rest of it. The difficulty is not about whether we had good psychiatrists in those days or not, was whether we had a proper psychiatric setup in Pakistan in those days or not. And I felt that wasn't there. And I thought that, it's something I would like to know about further. So I think that those were the two things which, if I look back, um, I will consider my personal sort of experience with my uncle, but also the time I spent for 4 weeks in psychiatry in Mayo Hospital as the reason I decided that I would like to do psychiatry. And yes, I think that coming to Britain, that was there was again two or three different reasons for that. One of the reasons I wanted to come to the UK was that I always felt that whereas when it comes to specialities like surgery, medicine, and others, the US has got a little bit of edge on the UK. The training schemes are fantastic and all the rest of it. At least 20 odd years ago, I was, and I'm not sure whether everyone is going to agree with me because there are a lot of psychiatrists who are working in US. I've got good friends who are working in US as well, but they will tell you that, it's better to be there. My personal belief was that I wanted to go to a country where the psychiatry was first recognized as a specialty in an actual sort of way. It's very different from other specialities, surgery or medicine, cardiology. These are the sort of things which everyone decides to, if you ask half of your class fellows, 90% of the class fellows will tell you, we want to be something else. Why psychiatry? In my own situation, I actually told my father that I'm actually becoming a psychiatrist, I think a year and a half into the training over here in the UK, after I passed my first membership exam. I was so afraid of telling him that I'm becoming a psychiatrist because I thought that he's going to be very disappointed in me. And it wasn't wrong because when I told him that I'm becoming a psychiatrist, his first question was why, as if, it's a wrong thing to do. I mean, he has changed his mind remarkably ever since, obviously, because he knows now that what was the reasons behind, and he knows that it's different. But the attitudes have also changed quite a lot over the last 20 years, even in this country. Um, मुझे याद है कि मैंने फर्स्ट जॉब जो थी वो ओल्ड एज साइकेट्री के अंदर थी यहाँ पे. And first job in psychiatry was in old age psychiatry because I actually did 6 months of house job over here again in medicine before starting the job in psychiatry. And one of the reasons I did that was um,
साइकेट्री के अंदर आपका जो है वो कमांड ऑन इंग्लिश इज बेट needs to be better than what the results from the IELTS would probably tell you. You just need to understand that for being a psychiatrist, um, you need to have the hands on the pulse of actually how the society is moving. It's very sensitive when you're discussing the subject of it's much more personal than, for instance, someone telling you that I'm having pain in my abdomen or having chest pain or um, my leg is, I can't walk properly or whatever. In psychiatry, you're asking sometimes questions you would never ask in the same detail, at least at a higher stage. So yes, I know कि medical school के अंदर आप लोग अभी इस वक्त medical students हैं, तो everyone is telling you कि हाँ जी drug and alcohol history और फैमिली हिस्ट्री और बाकी की चीजें बड़ी डिटेल में लेनी चाहिए, बट नोबडी इज एक्चुअली टेकिंग इट 2 or 3 years down the road in the same way as you are doing. The only place where you will see that happening in the with the same or even more fervor is within the specialty of psychiatry. It's a very sensitive sort of field, so that's why I wanted to make sure to get a little bit more knowledge of how the system works, but also to get better at speaking English, because we were not very good in our spoken English, not as good as you lot are nowadays. So it was very important that that aspect is covered as well. बट जब मेरी पहली जॉब मेडिसिन के बाद साइकेट्री के अंदर थी, वो ओल्ड एज साइकेट्री में थी, एंड आई क्वाइट क्लियरली रिमेंबर एक्चुअली मेकिंग अ रेफरल to one of my colleagues in medicine, because one of my patients' WBC count was quite low. So I actually did the bloods, read the picture for him, and sent him the request with what my interpretation was. And his first response was, "This is the first time I'm seeing someone from a psychiatry actually having so much knowledge about the bloods and stuff like that." It was quite annoying rather than because there was generally an expectation that you're going to be a psychiatrist because you can't get into any of the other fields in medicine. I was asked this question when I was applying for psychiatric field over here. यहाँ पे जो गोरे जो डॉक्टर्स थे मेरे साथ, जो colleagues थे, even they asked me this question, that why are you going into psychiatry when you can go into medicine, you can go into surgery, you can go into A&E, you are quite good. Why psychiatry? Um, I also think that there was never an encouragement to go into psychiatry for people who are otherwise they're getting the opportunities in other fields and not choosing it because there is यहाँ पे जो majority psychiatrists यहाँ पे भी in Britain, before I started in psychiatry in August 2003. Before that, most of the people who are going into psychiatry were the people who are unable to get into any of the other fields like medicine or surgery. So और किसी में नहीं जा पा रहे तो चलो यार साइकेट्री में अप्लाई कर देते हैं, बिकॉज उस टाइम पे होता ये था कि आप साइकेट्री में अप्लाई करते थे, आपको बगैर इंटरव्यू के बुला लेते थे. That was just about 2 or 3 years before. So in around early sort of 2000 or late 99, 98, 99 की बात होगी. मेरे कई colleagues ऐसे थे जो senior colleagues थे, they never went for an interview, अप्लाई किया और घर के ऊपर आ गया कि जी साइकेट्री में आपकी पोस्ट स्टार्ट हो रही है फलाने दिन से. So it was a default specialty for most of the people because they can't get into any other specialty, at least over here. For me, it was different because I was actually applying for only psychiatry. I wasn't applying for anything else. Um, and I've actually found the experience over here of working through different specialities initially challenging, but also quite helpful. In developing myself as a human being and as a doctor. It's a very holistic field. ये मेडिसिन सर्जरी की तरह नहीं है कि आप वहां पे खड़े हैं एंड यू आर द वन हु इज परफॉर्मिंग द प्रोसीजर एंड यस यू नीड योर नर्सेस टू होल्ड द थिंग्स फॉर यू, बट आप ही सारा कुछ कर रहे हैं या आप अपने क्लिनिक में बैठे हुए हो डॉक्टर के तौर पर. Psychiatry में you need other, actually the concept of multidisciplinary team you learn in over here. So that was quite a nice experience for me. Is there anything um, up till now what I've said you guys want to talk about or ask? मैं ही बोली जा रहा हूँ.
सर जैसे आपने बताया कि साइकेट्री के लिए आपको अपने पेरेंट्स को भी फादर को कन्विंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो इन इन सारी प्रॉब्लम से हम किस तरह डील करें, क्योंकि आज भी आफ्टर सो मेनी इयर्स ये इशू इसी तरह परसिस्ट कर रहा है. व्हेन वी हाँ. टेल आवर पेरेंट्स दैट वी वांट टू बी साइकेट्रिस्ट, दे वुड बी लाइक क्यों क्यों यही अच्छा. है क्या है, पागलों का अच्छा, मैं डॉक्टर अब बनना है, आपको एक तो बात आपको बताऊं, इस मेरा तरह. मेरा उसके बारे में बड़ा उसकी दो रीजंस हैं. देखें, एक रीजन पता है क्या है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के ऊपर इतना स्ट्रेस है कि पेरेंट्स आर almost making the decision about what their children are going to do. I was told by my mother when I was in class 2 or 3 that you need to become a doctor. It's like if somebody asked me why I became a doctor, become a doctor, my mother told me to. And that doesn't happen in this in हम जिधर बैठे यहाँ पे बच्चे मेरे अब जो हैं उस टाइम पे, one of my son is going to be 17 in August, and he has gone through, I'm going to become a lawyer, to becoming a doctor, to don't know what I'm going to become, over the last year or two. So they have got the choice. So that actually plays a huge role in parents then deciding कि जी हाँ आप ये कौन सी special. I firmly believe that it's your decision to make. There are certain decisions in your life which you need to learn, which you need to take. Remember that you are over 18 when you join the medical school. Most of us are anyways. So आप जो हैं वो 18 से 22 23 का जो सफर तय कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है. यू आल्सो नीड टू लर्न, स्पेशली इन पाकिस्तान, कि व्हाट आर द डिसीजंस you want to make totally independent of what your parents are telling you. And one of the most important decisions, I'm not going to talk about whether you should get married by your मेरे उस बारे में बड़े sort of strong views हैं, but I'm just going to come to the, I think that it is extremely important that now that you have become doctor, most of us have made that decision probably ourselves, or parents have influenced in one way or another. We need to at least make a decision about what specialty we're going to go into. It's very, very important, because if you don't want to go into a certain specialty, whether it's psychiatry or it's surgery or even a branch of surgery, then you could probably going to be okay when you are training. जब आप training के अंदर होते हैं ना, तो it's challenging whichever specialty you are in. Most of us are good enough to acclimatize. हम we are very good. The South Asians, Indians and Pakistanis बहुत अच्छे हैं हम इस चीज में कि हम कहीं पे भी जाके काम जो है ना वो अच्छे तरीके से कर लेंगे. But whether that work is going to make us happy or not is a different issue. And what you need to remember is that right now when you are in your medical school, it looks like कि हाँ जी ये तो बड़ी मुश्किल चीज है कि मैं किसी जगह पे पहुंच ही जाऊं. और 10 years down the road और 15 years down the road आप अपने आप को क्वेश्चन करते हो कि यार मैं उस टाइम के ऊपर ना चूज करता गायनेकोलॉजी, या गायनेकोलॉजी चूज कर लेता तो अच्छा था. यानी कि हमारे टाइम पे तो ये होता था कि जी काफी खवातीन सिर्फ इसलिए गायनेकोलॉजी में जाएंगी क्योंकि उसकी वजह ये है कि लड़कियों के लिए गायनेकोलॉजी बड़ी अच्छी फील्ड है. आई डोंट अंडरस्टैंड कि लड़कों के लिए क्यों नहीं गायनेकोलॉजी अच्छी फील्ड, या लड़कियों के लिए जो है वो सर्जरी क्यों नहीं अच्छी फील्ड. देयर आर ग्रेट सर्जन्स इन द वर्ल्ड हु आर वुमेन. सो दैट इज अनदर थिंग व्हिच प्लेज अ लॉट ऑफ रोल. हाँ जी, क्योंकि लड़कियों ने काम के साथ घर भी चलाना है, बच्चे भी पालने हैं, तो उनके लिए स्पेशलिटी ऐसी होनी चाहिए कि जो बड़ी ठंडी हो. उस कॉन्टेक्स्ट में लोग कई दफा साइकेट्री सजेस्ट करते हैं. एंड आई हैव गॉट फ्यू क्लास फेलोज ऑफ माइन हु आर female class fellows from King Edward, who are working as psychiatrists. But fortunately, all three or four of them, the ones in Britain, they chose the psychiatry themselves. Because psychiatry unfortunately उन fields में से है कि जो कि unlike medicine और surgery, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी ये problem होगी, लेकिन psychiatry में ज्यादा बड़ा problem होता है. It's a huge departure from how you know medicine. इसीलिए जब युशे ने मुझे पूछा कि जी आप what's the title of your presentation, my response was that why I chose to become a psychiatrist and not a doctor, because that's what the society tells you कि आप डॉक्टर हैं. नहीं, लेकिन आप तो साइकियाट्रिस्ट. इवन यहाँ पे मेरे लोकल जिम के अंदर जब मैं जाता हूँ तो मैं किसी को जी आप क्या है, मैं जी आई एम अ साइकियाट्रिस्ट. So your wife is a doctor because she's a GP, and I'm like I am a doctor as well, but yeah, I mean I'm then a psychiatrist. So ये यहाँ पे भी जनरल पब्लिक के अंदर यही कॉन्सेप्ट है. वो साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को ही नहीं सेपरेट कर पाते. सबसे बड़ा मसला तो ये है. अच्छा जी आप साइकोलॉजिस्ट हैं, नहीं जी मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, सो व्हाट्स द डिफरेंस. यहाँ पे भी नहीं लोगों को पता होता. तो उसकी एक रीजन ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम पे ही है ना मेडिकल स्टूडेंट्स के तौर पे, बिकॉज द स्टिग्मा स्टार्ट्स
from within the field of medicine, I believe. ये ज़हन में रखिएगा कि हम खुद ही स्टिग्मेटाइज करते हैं अपने कोलीग्स को जो साइकेट्री के अंदर हैं, before anyone else will start stigmatizing. So it's very important that you make the decision about what you're going to do yourself, whether you're doing psychiatry or anything. Convince करने की पेरेंट्स को जरूरत नहीं. I never convinced my father. I decided at that time I'm not going to tell my father. क्या फर्क पड़ता है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, he's phoning asking हाँ बेटा कैसी जा रही है जॉब, जी बहुत अच्छी जा रही है, और जनाब अल्लाह का शुक्र है गुजारा हो रहा है, शादी हो गई है, बच्चा हो गया है जनाब, काम सही चल रहा है, ठीक है. 1 year, 1.5 year down the road, when you have passed your membership exam, you have gone halfway through the training and you are there to become, next stage पे आप जाने लगे हो जो कि यहाँ पे, so then you can, my father was, a little bit upset, but then he just, accepted it. भाई आप अपने इंडिपेंडेंस के अंदर हैं, आपको कोई जबरदस्ती रोक कोई नहीं सकता. ये ज़हन में रखिएगा बात कि हमारे दिमागों में बनाए हुए कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि somebody is actually controlling us. We are always making the decisions about what we are doing ourselves, more or less. तो ये चीज जो है ना वो आपको ये जो है एक freedom to make a decision about what you are going to do, that's a very basic thing. आपने सारी जिंदगी उस जॉब में काम करना है. जिस तरह आपने मेरे ख्याल में ये डिसीजन भी कि who you should or one should get married to, क्योंकि आपने सारी जिंदगी उसके साथ रहना है, आपके अम्मा अब्बा ने नहीं रहना. इसी तरह जो जॉब है उसमें भी आपने ही सारी जिंदगी रहना, आपके अम्मी अब्बू ने नहीं रहना. So you should be making those decisions so that you can own or disown them later on yourself. गलत है तो खैर, इंसान से गलतियां तो इंसान से होती हैं. यहाँ पे भी लोग कई दफा एक स्पेशलिटी में चले जाते. I've seen a lot of people जहाँ पे जनरल प्रैक्टिस के अंदर आते हैं, 2 years down the road they decide कि यार we want to change to psychiatry or the other way around. I've seen surgeons who will make decision at the end of their training after doing membership fellowship करने के बाद जी हम psychiatrist बनना चाहते हैं. So that's not an issue. The issue is कि आपने अपना पहला जो decision था कि क्या बनना है वो आपने अपनी choice से लिया है कि नहीं लिया, so that you can own that decision later on. Hello sir, I have a question. Can you hear me? I'm Dr. Umsar. अच्छा सर, एक तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस टॉक, इट वाज वेरी इंस्पायरिंग. आई एम, अल्लाह का शुक्र है, फाइनली स्टेज पे हूँ दैट आई नो कि मैंने साइकियाट्री में जाना है. और आपकी बात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई है कि अच्छा ठीक है, मुझे अब ज्यादा मेहनत इस बात पे नहीं करनी है कि मैंने अपने घर वालों को कन्विंस करना है, मुझे अपने पाथवे पे मेहनत करनी है. सर वट मुझे पूछना ये है कि आपने कहा कि आपने वहां जाके भी दोबारा थोड़ी सी हाउस जॉब की थी टू आपकी स्किल्स बेहतर करने के लिए बिफोर यू वेंट इनटू साइकियाट्री, राइट? साइकियाट्री में वो जो आप जॉब की बात कर रहे हैं वो आपकी ट्रेनिंग जॉब थी पहली या नॉन ट्रेनिंग जॉब थी? ट्रेनिंग जॉब थी. मैंने किया कि इधर आया, मेरी माय फर्स्ट जॉब वाज, व्हाट आई डिड वाज दैट आई केम टू दिस कंट्री, डिड माय प्लैब 2, प्लैब 1 जो था वो इस्लामाबाद में किया, प्लैब 2 जो था वो उस टाइम के ऊपर सिर्फ यूके में होता था. अब मुझे नहीं पता कि कहीं और भी मेरा ख्याल है कि होता है कि नहीं, बट उस टाइम पे सिर्फ यूके में था. So I came, I did my PLAB 2 and then I did a clinical attachment in urology. अब आप लोग हैरान हो गए कि मैंने यूरोलॉजी में क्यों की. उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे पाकिस्तानी कंसल्टेंट थे और कहीं पे मिल नहीं रही थी, तो मैंने कहा यार अस्पताल में तो दाखिल हूँ, उसके बाद बाकी की देखूंगा. डिड 4 weeks of अटैचमेंट विद हिम, जिसका मकसद ये था कि आई वाज जस्ट शैडोइंग हिम, और मैं कुछ नहीं कह रहा था. उनके साथ सर्जरी के अंदर जाके थिएटर में खड़े हो गए, क्लिनिक में बैठ गए, जस्ट वाज सीइंग हिम स्पीकिंग टू द पीपल. सो मेरे से जब बाद में उन्होंने क्वेश्चन किया, और हर जगह पे होता था कि जी आप साइकेट्री के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आप यूरोलॉजी में अटैचमेंट क्यों कर रहे थे, तो मेरा रिस्पॉन्स ये होता था कि जी मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि आई नीडेड टू सी कि यहाँ पे मेडिसिन काम, मैं तो बाहर से उठ के आया हूँ, मैंने तो नहीं बरतानिया में तालीम हासिल की, मैं तो यहाँ का मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ उस तरह था. तो आई नीडेड टू नो कि यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो अपने पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम how we used to interact or how we were used to seeing our seniors interacting with the patients. मैं आपको honestly एक सेकंड यहाँ पे, if you don't mind, I'm going to actually move from here with my so that at least I can. Right. Sorry about that. That's okay. Sorry, I was just trying to basically give. यहाँ पे असल में मसला ये कि जो स्कूलिंग है वो भी होम स्कूलिंग ही चल रही है इस टाइम के ऊपर. तो मेरा जो बेटा था वो अभी सुबह उठ के उसने
अपना जो भी था वो स्टार्ट। अच्छा जी, सॉरी, आपका क्वेश्चन आपने दोबारा जरा रिपीट करेंगी उनसा? जी जी, मैं पूछ ही रही थी कि आपकी पहली जॉब जो साइकेट्री में थी वो ट्रेनिंग थी या नॉन ट्रेनिंग? सॉरी, मैं मजीद ये भी पूछना चाहूंगी कि डू यू रिकमेंड कि हम साइकेट्री में डायरेक्ट ट्रेनिंग में जाएं? बिकॉज अब आई हैव हर्ड पीपल के वो MSRA टेस्ट देके डायरेक्ट ट्रेनिंग में चले जाते हैं। अच्छा, और एक ये भी ऑप्शन है मेरे पास, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, मैंने कहा कोई एक बात दफा पूछ रहा हूँ सो यू कैन एड्रेस इट। नहीं, go ahead। एक ये भी ऑप्शन है कि जो हम पहली जॉब लें नॉन ट्रेनिंग वो भी साइकेट्री में हो। व्हाट आई एम स्केयर्ड ऑफ इज कि मेरा पाकिस्तान में साइकेट्री में एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इवन दो आई एम कंपोलियन साइकेट्री में एक्सपीरियंस अब ये बढ़ रहा है। यूशे ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, देयर इज अवेयरनेस राइट नाउ, यस ग्रेट। व्हेन आई वाज अंडरग्रेड तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी और मेरा साइकेट्री वार्ड का एक्सपीरियंस एज सच नहीं है, हाउस जॉब में भी नहीं है। तो आई वांट साइकेट्री का पहले एक्सपीरियंस इन यूके जो कि अभी ट्रेनिंग में ना हो, नॉन ट्रेनिंग हो। वुड यू रिकमेंड दैट कि मैं नॉन ट्रेनिंग जॉब ही साइकेट्री में ही ढूंढूं या एनी क्लिनिकल अटैचमेंट वुड डू बिफोर गोइंग इनटू ट्रेनिंग? सो पहली चीज तो ये कि मेरा कोई किसी किस्म का साइकेट्री का एक्सपीरियंस नहीं था जिस टाइम के ऊपर मैं भी साइकेट्री में, आई नेवर डिड एनी जॉब इन साइकेट्री इन पाकिस्तान अदर देन दैट 4 वीक जो रोटेशन थी 4th ईयर के अंदर, बस वही थी साइकेट्री का एक्सपीरियंस। क्योंकि साइकेट्री के अंदर आपको काम करने के लिए जरूरी है कि आप जो है वो बेसिकली ट्रेनिंग के अंदर हो साइकेट्री के अंदर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि पाकिस्तान में साइकेट्री की जॉब होती। यहाँ पे आने के बाद मैंने कोई साइकेट्री की जॉब नॉन ट्रेनिंग नहीं की, मैं डायरेक्टली जिसको कहते हैं ट्रेनिंग पोस्ट के अंदर गया था। उसकी रीजन ये थी कि मेरे ख्याल में एक दफा आपने डिसीजन ले लिया है कि आपने साइकेट्री करनी है, तो आपको अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए ये पता होना चाहिए कि आपने साइकेट्री करनी क्यों है। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू नो एनीथिंग इन साइकेट्री, भी कमन। ये तो एक ऐसी फील्ड है कि जिसके अंदर लोगों का एक्सपीरियंस जनरली होता ही नहीं है बिफोर। यहाँ पे भी अब उन्होंने ओवर द लास्ट 10 years, so when I came over here the situation was कि जी आप 6 महीने मेडिसिन 6 महीने सर्जरी जिस तरह पाकिस्तान में है था उस टाइम पे, आई डोंट नो कि अब है कि नहीं क्योंकि आई एम नॉट इन्वॉल्व इन ऑब्वियसली उतना। उस जमाने में था 6 महीने मेडिसिन 6 महीने सर्जरी। यहाँ पे अब उन्होंने ये किया है कि आपकी जो हाउस जॉब है वो 2 सालों पे फाउंडेशन ईयर 1 और फाउंडेशन ईयर 2 पे बेस्ड है। आप 4 months की पोस्ट करते हैं मुख्तलिफ स्पेशलिटीज में जिनमें मेडिसिन सर्जरी साइकेट्री, मतलब ये कोई फिक्स नहीं है। आप जब अप्लाई कर रहे हो तो आपके सामने एक लिस्ट होती है। साल के अंदर 12 महीने या 2 साल की जो आपकी FY1 और FY2 होती है उसके अंदर आपके पास 6 पोस्ट हो सकती हैं। वो जो 6 पोस्ट हैं उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए होते हैं। आप अपनी मर्जी से अपने ग्रुप्स चूज करते हैं, उसमें हो सकता है कि साइकेट्री हो, उसमें हो सकता है ना हो। अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप साइकेट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन करो पाकिस्तान के साथ, तो अगर आपने 1 साल की हाउस जॉब की हुई है जिसमें आपने साइकेट्री का एक्सपीरियंस नहीं लिया, आप यहाँ पे प्लैप करके आती हैं और उसके बाद इनिशियली आपको कोई अटैचमेंट वगैरह वैसे करनी है तो आप कर सकती हैं, बट आई डोंट थिंक सो दैट इट इज नेसेसरी कि आप जब अप्लाई कर रही हैं तो आप नॉन ट्रेनिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करें, आप ट्रेनिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अगर आपको ट्रेनिंग पोस्ट मिलती है, नॉन ट्रेनिंग पोस्ट का फायदा ये होगा आपको कि आप जो है किसी जगह के ऊपर जाके थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेंगी। बेनिफिट ये होगा इंस्टेड ऑफ फॉर इंस्टेंस जिस तरह मैंने 6 महीने की मेडिसिन में जॉब की थी, उस वक्त मेरा मकसद ये था कि यार जरा थोड़ा सा स्पोकन इंग्लिश में बंदा बेहतर हो जाए, लोगों के जो मुख्तलिफ किस्म के जो लोकल एक्सेंट्स हैं, जो लोकल उनकी जो भी वर्ड्स हैं, जो जिस तरह हम पाकिस्तान में जब उर्दू बोल रहे होते हैं वो उर्दू बड़ी डिफरेंट है जब आपके पास कोई बाहर से बंदा आएगा उर्दू बोलता हुआ, उसको उर्दू की जिस तरह समझ है, हमारे कुछ कन्वर्सेशनल जो होती है ना लैंग्वेज, उसके अंदर कुछ अपने कुछ डेवलप होती हैं वर्ड्स जो कि कराची की साइड पे जो बोले जा रहे होंगे वो लाहौर में नहीं होंगे, इतना डिफरेंस होता है। तो वो आपको पिक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो मैंने वो जो था वो अपनी 6 महीने की मेडिसिन की पोस्ट में कर ली। अब आप जो है वो आके यहाँ पे नॉन ट्रेनिंग पोस्ट में उसको करना चाहती हैं, यानी कि यहाँ पे मैंने हर किस्म के ट्रेनिंग देखे हैं। सम वेंट डायरेक्टली इनटू साइकेट्री, सम वेंट इनटू नॉन ट्रेनिंग पोस्ट बिफोर गोइंग इनटू साइकेट्री, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था सीधा ही साइकेट्री में चले गए। तो ये हर तरह से पॉसिबल है। मेरी सजेशन ये है कि आप जो है वो यहाँ पे आके जब आप आते हैं यहाँ पे तो आप नॉन ट्रेनिंग और ट्रेनिंग पोस्ट दोनों के लिए अप्लाई करें। आपका पहला मकसद ये है कि यू आर सिक्योरिंग अ जॉब टू बेसिकली स्टॉप योर डिपेंडेंस ऑन योर फैमिली बैक होम। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जब आप इस मुल्क में आते हैं ना तो ये होता है कि आपने कितनी जल्दी
जो आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको पाउंड्स भेजे जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंस खत्म करनी है। ये ज़हन में रखिए, एक तो उनके लिए भी बेहतर है और आपके लिए भी बेहतर है, क्योंकि उसके बाद जो है ना फिर आप जरा अपने अंदर भी बंदा इंडिपेंडेंस महसूस करता है, जो कि हमें पाकिस्तान में उस तरह महसूस नहीं होती, बिकॉज़ वी आर लिविंग विद आवर पेरेंट्स, ऑल ऑफ अस आर। तो वो थोड़ा-सा जिसको कहती है ना ये चीज़ इसलिए मैटर करती है कि आप पहले जॉब सिक्योर करें, जॉब सिक्योर करने के बाद जो है वो वंस यू हैव सिक्योर्ड अ जॉब, वर्कड इन फॉर इन 6 मंथ्स, तो आप चेंज कर लो साइकियाट्री की ट्रेनिंग में। अगर नहीं मतलब आपको मिलती ट्रेनिंग में डायरेक्ट, अगर आपको ट्रेनिंग में डायरेक्ट मिल जाए जो मिलती है लोगों को, दैट्स ग्रेट एज़ वेल। चैलेंजेस थैंक आपको हर जगह पे शुरू-शुरू में थोड़े से होंगे। पीपल अप्रिशिएटेड के लोग जो हैं वो बाहर से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं इधर। साइकेट्री में रियलाइजेशन और एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, ये याद रखिएगा बाकी स्पेशलिटीज़ के मुकाबले में। इट्स अ गुड स्पेशलिटी इन दैट सेंस एज वेल कि बिकॉज इट्स हेवीली एक तो नेचर भी इस किस्म का स्पेशलिटी है, बट ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेजेंस फ्रॉम you know Pakistani and Indian consultants over here, so there is a lot of openings over here as compared to other specialities. you so much, sir. This was very helpful. It has helped me make a decision. बहुत बहुत शुक्रिया. No problem. अच्छा जी, तो हम किधर तक पहुंचे थे? मैंने आपको बताया था कि जी मेरी फिर उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। ट्रेनिंग जो थी वो मेरी अगस्त 2003 में स्टार्ट हुई। फर्स्ट 3 इयर्स वर, एंड रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो इवॉल्व करती है कॉन्स्टेंटली। जो मैं ट्रेनिंग कर रहा था आज से 17 ईयर्स अगो, जिसमें मैंने स्टार्ट लिया था, जो मेरा ट्रेनी है इस टाइम के ऊपर, ही इज इन अ वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग स्कीम एट दिस मोमेंट। जो उसका असेसमेंट का तरीका है, एनुअल या 4 मंथली या 3 मंथली या 6 मंथली, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यूज्ड टू हैपन इन माय डेज। मेरे टाइम पे ये था कि 6-6 महीने की पोस्ट्स होती थी मुख्तलिफ स्पेशलिटीज के अंदर। सो वी यूज्ड टू गो, आई डिड ओल्ड एज साइकेट्री, उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटीज की, उसके बाद जनरल अडल्ट की, उसके बाद फोरेंसिक्स कर ली। अच्छा, मेरा ये था कि आई डिसाइड एट दैट टाइम आई वाज ऑलवेज, आपको नेक्स्ट ये होता है कि जी अब आपने साइकेट्री शुरू कर ली, अब आप फील्ड कौन सी लें साइकेट्री की, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। सो आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन साइकेट्री, forensic psychiatry or for a psychiatry of people with learning disabilities and autism spectrum disorder. um, उसकी वजह ये थी कि हर अगेन द सेम थिंग, हर बंदा जनरल अडल्ट साइकियाट्रिस्ट था, हर दूसरा बंदा ओल्ड एज साइकियाट्रिस्ट, एंड आई वाज लाइक, यू नो व्हाट्स द फन इन एक्चुअली डूइंग विद व्हिच एवरीवन इज डूइंग, लेट्स चूज समथिंग व्हिच इज अ लिटिल बिट मोर चैलेंजिंग एंड पीपल आर रिलक्टेंट टू गो इनटू दैट। तो वो फर्स्ट 3 इयर्स जो थे वो ट्रेनिंग के थे, जैसे आप आजकल के टाइम के ऊपर कोर ट्रेनिंग कहेंगे, जिसे CT1 टू CT3 पोस्ट कहते हैं यहाँ पे। अब कोर ट्रेनिंग जो आपकी, याद रखिए जो मैंने आपको पहले 2 बताए हैं स्टेजेस जो थे, फाउंडेशन ईयर 1 और फाउंडेशन ईयर 2। FY1 FY2 अगर आपने प्लैब किया है और आप आके फाउंडेशन ईयर, अगर आपने हाउस जॉब पाकिस्तान में की हुई है, तो यू हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्चुअली बाईपासिंग द फाउंडेशन ईयर। लेकिन अगर आपने हाउस जॉब नहीं की हुई और आप डायरेक्टली पहुंच गए हैं यहाँ पे, तो फिर जो है वो आप सीधा फाउंडेशन ईयर में जाएंगे, विच इज एक्चुअली फैंटास्टिक। My wife did, she's from the same year of medical school, जो मतलब मेरे ही क्लास फेलो थी, बट यहाँ पे आने के बाद 3-4 साल जो थे वो पहले she couldn't do the job because we were having children। तो जब बच्चे हो रहे होते हैं तो unfortunately I say this quite ओपनली एक्सेप्टेड कि औरतों के लिए, खवातीन के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि देयर आर फिजिकल चैलेंजेस टू देयर प्रोग्रेशन व्हिच इज ओनली पॉसिबल टू ओवरकम। कि आप कहेंगे जी मैंने बच्चा नहीं करना अभी, ठीक है ना, ये इट्स अनफॉर्चुनेट इन सम वेज बिकॉज मैन डोंट हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू नो, हमने रात को बच्चे को देखना है, उसके लिए बोतल पकड़ लेनी, बट वी आर नॉट एक्चुअली गोइंग थ्रू द फिजिकल प्रोसेस ऑफ हैविंग अ चाइल्ड फॉर 9 मंथ्स। हालांकि UK is actually a very very friendly country when it comes to pregnancy and maternity leave and all the rest of it, but there are still unfortunately उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, and she went into the foundation year post, so उसने FY1 FY2 की, and then she went into the core training for general practice। तो अब जो है वो यही है कि आप FY1 FY2 कर सकते हैं अगर आपने हाउस जॉब नहीं की हुई, अगर की हुई है तब भी कर सकते हैं, बाय द वे। My wife did her house job in Pakistan, but she still decided to go for FY1 post because she knew that that's probably going to give her a more, 1 साल से 2 सालों से कोई जिंदगी पे तो फर्क पड़ नहीं जाना, आपने तो ultimately आपका aim ये है कि you want to become। So she went through the FY1 FY2 post and then she did her core training CT।
So CT is for 3 years generally speaking. आप जिस मर्जी स्पेशलिटी में जा रहे हैं 3 से 3.5 साल के लिए होती है. The same goes for psychiatry as well. आपने एक दफा कोर ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, उस कोर ट्रेनिंग के दौरान आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि यू आर गोइंग टू पास योर एग्जाम्स. मेंबरशिप के जो एग्जाम्स हैं रॉयल कॉलेज साइकेट्री के, प्लस आपका जो यहाँ पे उन्होंने ओवर द लास्ट 10-12 years स्टार्ट किया है वो ये है कि दे एक्सपेक्ट यू टू हैव अ पोर्टफोलियो जिसके अंदर आपकी कॉम्पिटेंसीज, जो आपकी क्लिनिकल कॉम्पिटेंसीज हैं, वो बाकायदा जो है थ्रू वेरियस असेसमेंट्स, ऑनलाइन असेसमेंट जो हर क्लिनिकल सुपरवाइजर को, जो आपके साथ सुपरवाइजर काम कर रहा है, कंसल्टेंट, उसको फिल करनी पड़ती हैं. एंड देन यू गेट एन एजुकेशनल सुपरवाइजर रिपोर्ट. फिर आप एक पैनल के सामने जाते हो, वो पैनल ये डिसाइड करता है कि आपने पिछले 1 साल के अंदर जो है वो क्लिनिकली प्रोग्रेस किया है टू गो इनटू द CT2 पोस्ट. आपको वो भी शो करना पड़ता है. सो यू हैव टू डू बोथ ऑफ द थिंग्स. और कुछ साइकोलॉजी की जो है वो थोड़ी बहुत आई एम सेइंग साइकोलॉजी, आई शुड से साइकोलॉजिकल थेरेपीज की कुछ ट्रेनिंग होती है जो कि साथ उन्होंने अब मैंडेटरी कर दी है. सो यू हैव टू शो योर कॉम्पिटेंसीज not only in exams now but also in other those things which they are keeping a record of. In my time it used to be कि जी आपने मेंबरशिप पे एग्जाम पास किया है और हाँ अगर कंसल्टेंट कह रहा है कि जी इसकी प्रोग्रेस जो है वो ठीक है, कागज के ऊपर उसने अपनी रिपोर्ट की हुई है तो ठीक है. अब जो है क्योंकि हर चीज ऑनलाइन हो गई हुई है तो इट्स मच मोर सिस्टमैटिक. इट्स नॉट ईजियर और मोर डिफिकल्ट, इट्स जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स. जैसे हमारे टाइम के ऊपर MRC साइक का जो एग्जाम होता था उसके अंदर ऑस्की होती थी और उसके बाद आप रिटर्न में सॉरी आप क्लिनिकल्स में जाते थे एंड यू हैव टू पास इट इन द सेम गो. नाउ इट्स नॉट मैंडेटरी. आप जो है वो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर कर सकते हैं. आई थिंक देयर आर 4 एग्जाम्स, 3 or 4 exams probably for MRC. 3 exams. 3 Paper exams A, now. paper B, yes, paper A, हाँ. B and then clinical. क्लिनिकल्स वो बीच में पेपर A B के बाद इन्होंने 2 किए थे. बस इसी तरह चेंज होता रहता है. As I was saying that they keep on changing it. So now it's paper A B and then the CASC. उस टाइम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका एक पेपर, मतलब you used to have 2 exams with written and separate clinicals. So yeah, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने जल्दी कर लिए बगैर किसी उसके. दोनों जो थी वो एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही क्लियर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह. which was at least at that time very difficult क्योंकि बाहर के जो ग्रेजुएट्स थे उनमें पास परसेंटेज उस टाइम के ऊपर मेरा ख्याल है कोई 30% के करीब होती थी. अगेन टू डू विद द कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अदर स्टफ. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया. एंड दैट वाज that then I applied for the specialist registrar post जिसे अब आजकल ST4 onwards कहेंगे, 5-6 जो कि next 3 years होते हैं आपकी स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग के. तो पहले 2 साल फाउंडेशन ईयर के हुए, नेक्स्ट 3 साल जो है वो कोर ट्रेनिंग के हुए. जब आपने एग्जाम्स और अपनी वो शो कर दी तो नेक्स्ट जो है वो आप एक स्पेशलिटी चूज करते हैं. जैसे मैंने चूज की लर्निंग डिसेबिलिटीज, फोरेंसिक साइकेट्री, जनरल अडल्ट साइकेट्री, जो भी आपने चूज किया वो आपकी उस नेक्स्ट 3 साल जो होंगे ST4, 5 और 6 वो आपकी उस स्पेशलिटी के अंदर ट्रेनिंग है. तो वो जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट की होती है, एक ही सब्जेक्ट में होगी. Unless and until you are able to secure a dual training scheme जो कि बहुत रेयर है. अब हो चुका हुआ. पहले लोग ये करते थे कि वो 3 साल के लिए जनरल अडल्ट कर लिया, उसके बाद फिर कैम्प्स में चले गए चाइल्ड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ में या फोरेंसिक में चले गए. अब जो है वो आपको या तो कोई ऐसी ढूंढनी पड़ती है 4-5 साल की हायर ट्रेनिंग जो कि बहुत रेयर है. लेकिन ये कि दे आर लुकिंग इनटू ब्रिंगिंग दैट बैक क्योंकि उनको जरूरत तो है इस चीज की. सो व्हेन आई डिड माय लर्निंग डिसेबिलिटीज ट्रेनिंग इन 2006 to 2009, तो उस टाइम के ऊपर जो है वो मैंने लर्निंग डिसेबिलिटीज और उसमें भी फोरेंसिक लर्निंग डिसेबिलिटीज के अंदर थोड़ा सा साल का वहाँ पे एक्सपीरियंस हो करके 3 years complete, and then I basically applied for a consultant post and I got alhamdulillah consultant post in 2009. I think तकरीबन 11 साल हो गए हैं मेरा ख्याल है. हाँ, see one of the other benefits which I think about psychiatry is कि अगर आप if you are really good at doing your exams तो आप जो है वो अपने बाकी के कुलीग से बहुत पहले कंसल्टेंट बन जाते हो. I was the first one in my whole class of 2 कितने की अभी KE की यही क्लास की स्ट्रेंथ है ना, 220, 240, 250 350 सर, 350 प्लस 350 350 प्लस
तो वह मैं सोच भी नहीं सकता कितने। हाँ, तो वह हमारे टाइम पे भी मेरा ख्याल है कुछ इसी तरह ही होगा, 275 अप्रोक्सीमेटली। एंड आई थिंक दैट ऑलमोस्ट I would say 70 or 80% of my class fellows, which was really less at that time, because हमसे जो अगली क्लास थी वो तकरीबन 95% लोग पाकिस्तान से चले गए। अनफॉर्चुनेट है मेरे ख्याल में, क्योंकि उसकी वजह ये कि we miss on a lot of talent as a result of that. लेकिन who am I to tell you कि भाई हर बंदे को हक है अपनी जिंदगी को बेहतर करने का। So yes, half of my class is sitting in the US, and probably half of them are sitting in the UK now, and maybe about 10-20 class fellows have stayed in Pakistan or have gone back. 2 or 3 of them have gone back, probably one of them from America. I know a couple of my friends who actually went back from UK, but then came back over here. Um, so yes, you can say that, you know, इस सेंस में आप कह सकते हो कि ये जो है वो थोड़ा सा था कि हम सारे के सारे निकले उस टाइम के ऊपर। एक्सपीरियंस इज गुड इन दैट सेंस कि आपको यहाँ पे इतना उतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप जो है वो अपने एग्जाम, हाँ मैं आपको कह रहा था कि मेरे आई वाज द फर्स्ट वन टू बिकम अ कंसल्टेंट इन माय क्लास ऑफ 275, क्योंकि उसकी वजह के एग्जाम सारे टाइम पे पास हो गए, ट्रेनिंग स्कीम के अंदर जस्ट खत्म की और 2009 में कंसल्टेंट बन गए। तो अब बाकी के मैं कई ऐसे अपने दोस्तों को जानता हूँ, जैसे मेरा एक क्लाइंट, आई एम नॉट मेकिंग फन, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ हार्ड इट इज in some of the other specialities to make it. For instance, one of my friends, my class fellows, he became a consultant in orthopedic surgery just last year. 10 साल के बाद, 10 years is a huge period of time if you think about it. Now I'm not saying कि आपको साइकेट्री सिर्फ इसलिए चूज करनी चाहिए क्योंकि इसमें कंसल्टेंट बनने के जल्दी चांसेस बेहतर हैं, but it is one of the things, you know, if you are interested in actually excelling quickly in your profession, एक मेरे ख्याल में it's a huge positive, rather than spending time, you know, waiting for the consultants to say हाँ भाई अब आपको पता है कि किस तरह नी को जो है वो आपने ऑपरेट करना है, and I know that they have got their reasons why it takes so long. But psychiatry का ये benefit भी है कि your course is actually, you know, जो आपका ट्रेनिंग का, सॉरी आपका जो मेडिकल स्कूल खत्म किया आपने, कॉलेज खत्म किया, और उसके बाद जो आपने जो एक पहुंचना होता है, जैसे पाकिस्तान में असिस्टेंट या एसोसिएट, यहाँ पे जो है वो कंसल्टेंट ही होते हो आप, यू आर नेवर एन असिस्टेंट एसोसिएट और वो उस किस्म की कोई नहीं होती, यू आर जस्ट अ कंसल्टेंट, नोबडी इवन कॉल्स यू अ सीनियर कंसल्टेंट, you know, you're just a consultant whether you are a first year consultant or you are a consultant in your 25th year. तो alhamdulillah ये एक benefit है psychiatry का कि you can become a consultant much quicker as compared to most of the other specialities other than probably general practice, क्योंकि उसमें भी जो ट्रेनिंग है वो 6 साल के अंदर आपकी खत्म हो जाती है। देयर आर अदर स्पेशलिटीज, जो सर्जरी की कुछ स्पेशलिटीज है उनके अंदर 8-10 साल लग जाते हैं। सो ये चीज है। ओके, सो what do you want me to talk about now? Tell me. Any questions at this point? Sir, overall, how long is the UK post-graduation program in psychiatry? हाँ, तो वही मैं आपको बता रहा था ना कि साइकेट्री के अंदर जो है ऑब्वियसली इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम्स जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं टाइम के ऊपर कि नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप टाइम के ऊपर क्लियर कर रहे हो एग्जाम्स, सो देन इट कैन, यू कैन गो फ्रॉम, लेट्स से इफ यू हैव स्टार्टेड राइट फ्रॉम द स्क्रैच, आपने स्टार्ट किया फाउंडेशन ईयर 1 पोस्ट के ऊपर, तो आपको लगेंगे 2+3+3, यू आर टॉकिंग अबाउट 8 years, ठीक है। अगर आप स्टार्ट करते हो डायरेक्टली इनटू साइकेट्री ट्रेनिंग स्कीम, जैसे अभी मेरे ख्याल में उनसा शायद क्वेश्चन कर रही थी मुझे कि ट्रेनिंग में कि नॉन ट्रेनिंग, तो देन यू कैन डू इट इन 6-7 years। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ क्विकली यू आर पासिंग योर एग्जाम्स, because a lot of people who are coming from different countries, it's not only from Pakistan, अगर आप नाइजीरिया से हैं या आप इंडिया से हैं, श्रीलंका या बांग्लादेश से हैं, जो फॉरेन ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए जनरली स्पीकिंग साइकेट्री का एग्जाम जो है, खास तौर पे जो एग्जिट एग्जाम है, द लास्ट वन, कैस्क एग्जाम, जिसे क्लिनिकल स्किल्स असेसमेंट कहते हैं, क्योंकि उसके बाद उन्हें पता होता है कि यार ये पास हो गया एग्जाम तो अब इसने आगे कंसल्टेंट ही बनना है, आप कोई नहीं रोक सकता क्योंकि इसने ट्रेनिंग स्कीम में चले जाना है। वो ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं पास करने, क्योंकि उसके अंदर आपकी बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स और बाकी चीजों के ऊपर वो जो है ना वो आपको असेस कर रहे होते हैं।
So, but yeah, I mean, I've seen people, a lot of people passing those exams in time, but I also know a lot of people who have struggled a little longer. लेकिन ये कि one way or another people get to their stage. It's like any other exams. कोई भी एग्जाम्स जो है वो आसान तो नहीं होते पास करने. अभी मैं आपसे कहूंगा तो आप लोग कहेंगे जी फाइनल प्रोफेशनली बड़ा मुश्किल एग्जाम है. ये हर स्टेज के ऊपर जिस एग्जाम के अंदर आप बैठ रहे होते हो वो मुश्किल ही होता है. सो हाँ, ये चीज़ तो है कि ओवरऑल ट्रेनिंग जो है वो आप समझ लें कि 6 साल, 6-7 साल या 8-9 साल के करीब है, डिपेंडिंग ऑन कि आप फाउंडेशन ईयर पोस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. ठीक है. Yes, sir. Thank you. So the next question is it possible to do academic research and clinical work side by side as an immigrant in as an immigrant psychiatrist in UK? बिल्कुल आप रिसर्च कर सकते हैं. अच्छा, अब मैंने यूशे को बात बताई थी, मेरा ख्याल है लास्ट टाइम जो मेरी इससे बात हुई थी तकरीबन फ्यू मंथ्स अगो. आई हैव नेवर बीन अ रिसर्च पर्सन. आई हेट रिसर्च. मेरे से रिसर्च होती ही नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस तरह बैठे. आई कांट, आई मीन इट्स अगेन प्रोबेबली गोइंग बैक टू व्हेन आई वाज सेइंग टू यू कि मुझे लगता है कि मुझे एडीएचडी था. दैट इज और है प्रोबेबली. तो वो wasn't फॉर मी. लेकिन यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है. आप क्लिनिकली गुड हैं, आप क्लिनिकली जिसको कहते हैं यू कैन डू इट. हाँ, रिसर्च बिल्कुल आप दोनों कर सकते हैं साइड बाय साइड. देयर आर पोस्ट वेयर इनफैक्ट आपकी जो ट्रेनिंग है उसके अंदर आपको वो यहाँ पे फैसिलिटी. देखिए, ऑडिट तो मस्ट है. ऑडिट इज अ कंपल्सरी पार्ट. हर 6 महीने में आपने एक ऑडिट करना होता है, मस्ट है. यू हैव टू शो इट. अगर आपने नहीं किए तो वो आपको आगे ही नहीं प्रोग्रेस करने देते. रिसर्च जो है वो आपकी अपनी इंडिविजुअल उसके ऊपर है. इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन रिसर्च, यू विल गेट पीपल हु आर गोइंग टू हेल्प यू विद दैट. हर जगह के ऊपर आपको कोई ना कोई 2 या 3 बंदे ऐसे मिल जाएंगे जिनको रिसर्च का शौक होता है. ठीक है ना. और अगर इफ यू आर वन ऑफ देम हु इज इंटरेस्टेड इन रिसर्च, दे एक्चुअली अप्रिशिएट इट अ लॉट. रिसर्च इज एक्चुअली अप्रिशिएटेड एवरीवेयर, क्योंकि हर बंदे के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती. क्लिनिशियन जो है वो, although it pains me to say it, it's a but I will openly accept it कि मैं अगर यहाँ पे देखूँ जिधर मैं काम कर रहा हूँ, I think that there are around 30-40 consultant psychiatrists. एक या दो होंगे जिनका रिसर्च में इंटरेस्ट है, बाकी 38 का नहीं है. So you have to understand कि it's a very difficult thing to do, and if you are keen on doing it, लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है किसी person to who is actually volunteering to do this. तो अगर if you are actually keen on it, they will find a way of actually helping you. आप academic research in a very specialist way शायद करने के लिए आपको स्पेशल पोस्ट ढूंढनी पड़े, मगर बेसिक रिसर्च जो है जिसके अंदर आपने नॉर्मल रिसर्च जो आपकी चल रही है किसी भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर, you will find the opportunity anywhere you are working in the UK or the US for a matter of fact. अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके कंसल्टेंट्स आपको लीड कर देंगे. वो नहीं होंगे वो आपको कोई ढूंढ के दूसरा अपना कोलीग कि जी ये जो है वो रिसर्च में इंटरेस्टेड है, लड़की या लड़का, काइंडली इसको आप जरा जिसको कहते हैं अपने उसके अंदर, एंड दे विल हेल्प यू विद दैट. सो इट्स नॉट एन इशू एट ऑल. Thank you, sir. Sir, are there any expectations that you had about this particular career path and that you have found different from reality, both in good and bad ways? So the good part is that there is a lot of things which I never expected from this specialty, which I can talk about all day. I think the bad part sometimes is still the same, which I was telling you about before. Um, even in this country, it frustrates you almost on a अगर daily basis पे नहीं तो weekly basis पे तो है कि when you are trying to basically communicate with your colleagues in medicine or surgery or कि आपका कोई मरीज है psychiatry, it's a bit of a more of an issue in my specialty क्योंकि I work with people with learning disabilities and autism spectrum disorder. तो होता ये है कि it's by the very nature of the field I am in, लड़कों या जो आपके patients male या female होते हैं उनकी, they don't have the same capacity to go and tell about the physical health issues themselves. If you are not getting those physical health issues treated in time, तो वो आपके mental health के ऊपर भी impact करना शुरू कर देता है. So when you are actually trying to sort of have these conversations with the other colleagues who are probably at the same level as yourself, you don't always get the same respect which you are expecting
from another, लेकिन ये कि it's getting much better now. Honestly, I've seen it changing every year, every 6 months. More education, more people. Again, it goes back to if you are going to make the decision to become a psychiatrist, not because you are unable to get into any other specialty, but because you are interested in it, then the outlook of the specialty changes itself. अब मैं अगर आपको बताऊं कि जब मैंने साइकेट्री की ट्रेनिंग स्कीम स्टार्ट की थी 2003 के अगस्त के अंदर, तो मेरे जो 7 लड़के थे इंटरव्यू देने के लिए, इंडियंस और पाकिस्तानी गए हुए, आई क्वाइट क्लियरली रिमेंबर, out of 7, I and another guy who was also from Pakistan, by the way, he was offered the job in the same training post, लेकिन ये कि वो he chose not to, क्योंकि उसने किसी और जगह पे जाके साइकेट्री की ट्रेनिंग पकड़ी थी. मगर हम दो को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो थे वो इसलिए आए हुए थे कि यार वो मेडिसिन में भी अप्लाई किया हुआ लेकिन पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती, तो हमने कहा कि साइकेट्री. आई क्वाइट क्लियरली रिमेंबर कि हमारा 10 सीनियर हाउस ऑफिसर्स का ग्रुप था, उनमें से गालबन 2 बंदे ऐसे थे जो जेन्युइनली साइकेट्री के अंदर इंटरेस्टेड थे. अच्छा, मजे की बात ये कि ऑल ऑफ देम आर नाउ कंसल्टेंट्स, ऑल 10 ऑफ देम. मगर उस टाइम के ऊपर यार मेडिसिन में नहीं मिली. मैं अभी भी सोच रहा हूँ मेडिसिन कर लूं, बीच में छोड़ के ट्रेनिंग, बस 2 साल यहाँ पे साइकेट्री. दैट इज नॉट द राइट वे टू डू द थिंग्स. आप अगर साइकेट्री करना चाहते हो तो साइकेट्री करो, और इसलिए ना करो क्योंकि उसकी वजह ये कि यार मैं जो है वो आसानी हो जाएगी. कोई आसान नहीं है फील्ड अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो. इट्स अ वेरी हार्ड फील्ड, स्पेशली इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज इट्स अ ह्यूज डिपार्चर फ्रॉम योर मेडिसिन. वो वाली कहा इनके आफ्टर 6 months आप, my wife did 6 months of post during her GP training in psychiatry. Acha, part of the reason I decided to become a psychiatrist because she's told me that you probably are going to be a good psychiatrist. You are in medical school, you are deeply in love, you just listen to your girlfriend obviously a little bit more than you are going to listen to most. And I was like, okay, that's fine. It was the right thing from her, and I thought that it's going to be good for her as well. She spent 6 months in psychiatry and she says to me, you know what, I have no idea how you are surviving through this. It is very, very difficult. So it's a very personal thing कि आप जो है वो रोज उन्हीं हर डेली बेसिस के ऊपर पेशेंट्स के साथ बैठ के unki very difficult sort of aspect of life. It's not only about their mental health, it's about their family life, whether they are indulging in drugs or other stuff, or baki ki cheezein. It's to listen and go through that sort of patient interaction day in, day out for the rest of your life is a very challenging thing, unless you like it. So मैं यही आपको suggest करूंगा कि जो चीज change करती है उसको वो यही करता है कि just decide that whether you want to do a psychiatry or not. It doesn't matter whether you are at the top of the class or not. I remember, I think that if you go and see, and I'm not trying to boast off or anything, but agar aap KE mein, I had a gold medal, for instance, in physiology, I think if I correctly remember, or 2 of them. So I was a brilliant medical student. I could have chosen any specialty if I liked. मैंने इट वाजंट दैट यहाँ पे आके मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि लोग मुझे कह रहे हैं कि हाँ जी आप ये क्यों कर रहे हैं. आई कुड हैव चोजन एनी स्पेशलिटी इफ आई वांटेड टू, but I didn't want to choose any other specialty, and that's why I chose psychiatry. And that's what 10 15 20 years down the road जब आप काम कर रहे होते हो, that actually helps with your sense of fulfillment कि हाँ ठीक है यार, साइकेट्रिस्ट इसलिए बने हैं क्योंकि शौक था, इसलिए नहीं बने क्योंकि किसी और काम में नहीं थे. तो ये कर लेते तो वो कर लेते तो पता नहीं क्या हो जाता. वो वाले ख्यालात आपके दिमाग में नहीं आते. राइट नाउ यू आर एट अ डिफरेंट स्टेज, you don't worry about those things in the same way. Like in 20 years down the road, when you think back at your life, I sometimes question myself, was it necessary for me to come into the learning disabilities? Why didn't I choose general adult psychiatry? Like, and then I know that why I chose learning disabilities or forensic side of it. There are parts of it which basically helps me in my legal side of the things, because I do a lot of work for the courts as well. तो वो चीजें बड़ा मैटर करती हैं मेरे लिए, और मुझे वो चीज उसमें नहीं मिलनी थी दूसरे वाली स्पेशलिटीज में. सो आप इवन उन क्वेश्चंस भी करते हो कि जो आपको नहीं, you don't expect you to ask those questions to yourself right now, but you're going to ask those questions 20 years later. And I always believe that yes, you can make wrong or right decisions, but you should never be making a decision about your profession
कि जिसके बाद आप 25 साल के बाद बैठ के सोचो कि यार काश मैं सर्जन बन जाता या काश मैं गायनेकोलॉजिस्ट बन जाता, तो पता नहीं कौन सा, ये नहीं होना चाहिए. You should be by now, you're finishing your medical school, or you're maybe in another couple of years time, you should know what you want to do in your speciality in the future. ये चीज जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. आप this is all you are expected to do. डॉक्टर तो सारे के सारे तुम लोगों ने बन ही जाना है. So you're supposed to know what you are going to do in the long term, not particularly about the speciality. मसलन आप ये नहीं इस टाइम के ऊपर आपको पता होता कि आपने साइकेट्री में स्पेशलिटी कौन सी करनी है, बट यू शुड नो कि हाँ यार मैंने साइकेट्री करनी है, या जनरली आपको एक या दो स्पेशलिटीज पे जीरो डाउन होना चाहिए. अभी मैं आपको बताऊं कि मेरी दूसरी स्पेशलिटी जब मैं आ रहा था तो क्या थी जो मेरे दिमाग में थी, तो यूर गोना जस्ट, आई एक्चुअली वांटेड टू बिकम अ साइकेट्रिस्ट और अ सर्जन. I never had any interest in anything else. And people say, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा, I only found these two specialities really challenging. And one of the reasons I decided not to become surgeon, not that there were not other reasons, was because I just thought, so, okay, I want to be working in the long term. अगर मैं 60s में या 70s तक survive कर जाता हूँ अपनी life में, if I do, I want to be still working. I do not want to retire. तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि यार 60s में मैं सर्जन हूँगा, आई हैव टू बी वेरी गुड विद माय जो आपके हैंड रिलेटेड स्किल्स होती हैं. पीपल जनरली रिटायर बाय मिड 60s इफ दे आर अ सर्जन. You don't have to retire if you are a psychiatrist till you die, as long as your mind is working. So those are the sort of things which basically also made played a role in my decision making. छोटी छोटी चीजें दो चार और भी थी, बट दैट वाज माय, आई न्यू दैट कि मैं अगर इस मुल्क में आ रहा हूँ तो मैंने या तो सर्जन बनना है या मैंने साइकेट्रिस्ट बनना है. आई हैड दी अपॉर्चुनिटी कि हाँ यार जीपी के अंदर चले जाओ, बड़ी अच्छी है, बड़ा जो है वो क्विक है और बड़े पैसे हैं. या एनेस्थीसिया वाज अनदर फील्ड, स्टिल इज अनदर फील्ड एनेस्थीसिया, जहाँ पे there is a lot of opportunities and it's a very exciting field for a lot of people. Wasn't for me. I just decided to stay, then decided कि हाँ मैं इधर आ गया हूँ, मैंने आके देख लिया है. I want to basically just choose जो कि मुझे पसंद है वो psychiatry, and I'm going to go into psychiatry. Sir, you use the term I don't want to say it, but your girlfriend said that you're going to make a good psychiatrist, right? How would you define a good psychiatrist now that you have so much experience? Dusra ye ke how do you take care of your own mental health? Like as a person suffering from depression myself, I am scared that how will I take care of my own mental health while dealing with other people as well with psychiatric conditions? Acha, you on your last question, you are probably going to find it actually quite therapeutic in a lot of ways. When you are actually taking care of other people's mental health, you will actually feel maybe less depressed in that sense. So, for instance, I sometimes feel that I am a very anxious person. I don't have probably an anxiety disorder, but I am inherently a very anxious, much more anxious person than, for instance, my wife. Um, who was my girlfriend at the time, just to let you know. ये नहीं था कि मैं उसके बाद girlfriend थी तो बस उसकी बात सुन के मैंने psychiatry कर ली और उसके बाद no. So she is my wife as well. But yeah, I think a lot of my, coming back to your original question answer, I think ये बड़ा matter करता है कि आप जब patients की help कर रहे होते हैं on a day-to-day basis, तो जो sense of fulfillment आपको उससे जो मिलती है ना, that helps with your mental health issues a little bit as well. It's not going to help with the clinical depression obviously, क्योंकि अगर आपका ब्रेन के अंदर जो है वो कोई केमिकल्स अप एंड डाउन हो, उसके लिए तो आपको मेडिसिन की जरूरत ऑब्वियसली है अगर इफ यू आर नीडिंग दैट. लेकिन ये कि it shouldn't be a challenge. In fact, I think that you're going to be a more of an asset if you think about it, because you can associate with a lot of those problems the patients are experiencing, which a normal psychiatrist means that the psychiatrist who doesn't have a mental health issue, usko us tarah samajh mein nahi hogi. Jis tarah mere case ke andar, I sometimes, when I'm assessing someone for the suicidal behavior, I actually find it probably much, I connect with the patients a little bit easier or better, because I have in my own life seen my uncle going through this. So उस सेंस में आपका जब आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस या पर्सनल आपकी जो आप लाइफ में इश्यूज होते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस कर भी रहे हो, इट डजंट मैटर. आई थिंक दैट आई नो, मुझे अभी भी याद है कि
was at probably, this is around 10 years ago. Royal College of Psychiatrists का जो head था Royal College का, the psychiatrist had a diagnosis of bipolar disorder, and he used to talk about it in every conference. ये जी सामने दो doctors बैठे हैं, they are my psychiatrists. So he had a diagnosis of bipolar affective disorder, and he was a great psychiatrist, so good that he was actually the president of the Royal College of Psychiatry. So it should not be a problem. I think that you can use it as an asset, in my opinion. Thank you. That was very helpful. And yes, the other part of your question was that whether a good psychiatrist, how would you define a good psychiatrist? There's no definition of a good psychiatrist. A good psychiatrist is a good psychiatrist if your patient is saying that you are a good psychiatrist. You would consider yourself to be a fantastic psychiatrist. अगर आपका मरीज ही आपसे खुश नहीं तो क्या फायदा? तो एंड में जो बेसिकली आपका गुड सर्जन, गुड साइकियाट्रिस्ट, गुड फिजिशियन होने का जो क्राइटेरिया है, मेरे ख्याल में सिर्फ एक चीज मैटर करती है, और वो ये कि आप फर्स्टली आपके पेशेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स, एंड सेकेंडली आपके कोलीग्स इस चीज को अप्रिशिएट करें कि यू आर अ गुड साइकियाट्रिस्ट. Who is a good psychiatrist, in my opinion, is the person who actually has the capability of being a good listener to start with. ये बड़ा important है कि you should be a good listener, but then it is also very important कि you have a capability of picking up on the non-verbal clues in your mental state examination as well. जैसे आप मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन के अंदर आप बंदे से मतलब वही बातचीत ही कर रहे होते हो ना एक दूसरे के साथ कि हाँ जी क्या हाल चाल है, यू आर ट्राइंग टू बेसिकली फाइंड आउट अबाउट whether they have got symptoms of a mood disorder or a thought disorder or psychosis or something like that, और उनकी insight वगैरह. मगर वो आपका एक verbal communication है. The non-verbal part of it is not, if not more, it's equally important. So if you are actually good at picking up the non-verbal clues, if you are actually able to see that someone is responding to unseen stimulus in the room despite saying कि जी मुझे कोई voices सुनाई नहीं दे रही, तो आपके chances उसको psychosis के साथ diagnose करने के बेहतर हैं बनिस्बत इसके कि आप उसके साथ जो conversation चल रही है उस पर rely करें. So yes, I think that if you are a good listener and if you are good in your communication skills, especially the non-verbal side of it, then I think that there are a lot of other things. Honestly, you should be hardworking. जो बाकी कहानियां होती है कि पंक्चुअल होना चाहिए, वो सारी चीजें मैटर करती हैं, बट अल्टीमेटली ये चीज मैटर करती है कि वेदर यू आर एंजॉयिंग योर वर्क एज अ साइकियाट्रिस्ट और नॉट. ये वो चीजें जो कि आपको कोई नहीं सिखा सकता. दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स व्हिच इज देयर और नॉट देयर. You are either going to enjoy it or you're not going to enjoy it. If I go and see someone in the prison and he is just constantly shouting, screaming, racially abuse use कर रहा है words, या वो जिसको कहते हैं वैसे ही चीखी जा रहा है, शोर मचा रहा है, there are going to be a lot of doctors who are just going to withdraw from that situation. डर गए जी, बड़ा मुश्किल है, I can't communicate. If you are actually cherishing that environment, अगर आप उसको चैलेंजिंग उस तरह समझने के बजाय उसको एंजॉय करते हो उस एस्पेक्ट को कि हाँ यार ये तो मजा आ गया, ये तो कोई मतलब डिफरेंट किस्म का आज मरीज है, देन यू आर गोइंग टू बेसिकली एंजॉय इट इन द राइट वे. अगर आप इन चीजों से घबराते हो, मतलब आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, यहाँ पे नेशनल हेल्थ सर्विस NHS जो है, उनकी पहली जो पॉलिसी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी. जीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि आपको कोई बंदा आके कोई बुरी बात, जैसे आप मेयो हॉस्पिटल में जब हम होते थे, मुझे याद है कि ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हैं जब लोग बाहर बंदूकें तान के खड़े होते थे कि निकलो बाहर, डॉक्टर ने छड़ना ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपने मेरे स्टेज 4 कैंसर की अम्मी को जो है वो नहीं बचा पाए, आप में क्यूट उस पर लेके आए हो. हेपेटाइटिस C जो एंड स्टेज था, आप बचाया नहीं आपने, तो बस आपको छोड़ना नहीं है. तो ये वो दो सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस वर देयर. लेकिन यहाँ पे ये होता है कि आप किसी को डॉक्टर को मतलब बदतमीजी से बात भी नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वजह की जीरो टॉलरेंस है. लेकिन साइकेट्री इज द ओनली फील्ड इन दिस कंट्री के जहाँ पे जीरो टॉलरेंस उस तरह नहीं वर्क करती, क्योंकि आपके मरीज आपके साथ मतलब हर किस्म के लेजे में बिहेव कर सकता है. So I have got quite a few patients who are 3 or 4 patients जो कि वैसे ही मतलब जिस टाइम पे mentally unwell होते हैं, they become very racist towards me. And you have got nahi Dr. Umar, if you want to basically transfer him to another consultant, that'll be fine. We are not. But why?
That's the thing, you need to learn how to deal with it. So psychiatry में zero tolerance work नहीं करती. So you should be very very thick skinned in some ways if you are a psychiatrist. हर चीज के लिए और हर किस्म की चीज के लिए आपको तैयार होना पड़ता है. I remember working in with and I still work with, obviously, pedophiles हो गए, या आपने किसी रेप का जो है वो रेपिस्ट है, आपने उसको जाके देखा, उसके बारे में आपने उसको असेस करके उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में आपने, you have to learn to dissociate yourself from your patient. First rule in it's the first rule in medicine anyways. आपका हिपोक्रेट ओथ जो आपको टेल करती you do not supposed to judge कि जी ये जो बंदा है इसने कत्ल किया है तो मैं इसका सही इलाज नहीं करूंगा, ये तो आपको भी पता है. लेकिन when you are actually doing the psychiatric evaluation of someone who has actually raped a 4-year-old child, for instance, or has raped even a 30-year-old woman, जो कि यहाँ पे भी होता है, when you are interacting with them and you are doing the expert witness report कि यार इसको कोई psychiatric issue था या नहीं था, that is where the whole challenge starts. With a lot of psychiatrists find it difficult to basically dissociate themselves from those feelings. It's natural. हमें से काफी जो हैं वो आप लोग आगे जाके मतलब बच्चे हो जाते हैं आपके घर में वैसे बच्चे, you just find it very hard to basically not have that feeling of hate, or most of us would. आपको उससे डिसोसिएट करना और बेसिकली जस्ट मेक श्योर कि इट्स जस्ट अ क्लिनिकल इंटरेक्शन, that's the bit which basically is sometimes challenging, but that's the fascinating part about this field as well. You will not find it happening in any other specialty in the same way. तो मतलब सर्जन भी जो है वो कोई किसी ने कोई कत्ल किया हुआ तो उसको अगर गोली लगी है तो उसको सही तरीके से ऑपरेट करेगा, बट दे आर नॉट एक्चुअली टॉकिंग विद देम. They're not spending an hour listening to their thoughts about why they actually decided to kill someone. तो वो जो फाइनल डिटेल्स होती है ना, वो उसमें बेसिकली जो है वो चैलेंज होता है. आप किसी से पूछ रहे हो कि हाँ भाई आपने जो है वो इस बच्चे को जो है उसके साथ इस तरह किया, finding the speaking with him about their desires around that, or why they did it, how they went about it, किस तरह उन्होंने उस बच्चे को जो है वो किया, सारा कुछ, वो जो चीजें होती हैं, जो स्टेप्स होते हैं जिनके बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, तो दे आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू गो थ्रू. लेकिन ये कि इफ यू आर if you like doing that sort of stuff or consultation and you don't find it too challenging, you just enjoy that challenging aspect of it, then it's I don't want to use the word fun क्योंकि वो जाहिर है कि एक बड़ी serious situation होती है जब इस किस्म की होती हैं, लेकिन ये कि it is actually you do feel that adrenaline rush which you feels at your stage quite frequently, क्योंकि आप लोग अभी भी डॉक्टर बने हो, जैसे ही A&E में जाके खड़े हो गए पहले दिन आप लोगों को that sense of जो rush एक आपके दिमाग में आता है ना कि यार मैंने फलाने की मदद की, you don't get it after a certain period of time because this becomes your job. लेकिन ये कि you do feel it, you need to feel it every so often, and that's where I think मुझे ये psychiatry में मैं शुक्र करता हूँ कि I still feel that the moment you stop feeling that rush on a regular basis, then probably the time is not right to continue in any of that job anymore. So you just need to remember that that is another thing which it's challenging but it's fun. That was amazing. बहुत मजा आया सुन के. You sure you haven't got any questions? Actually, sir, I have been providing ये निदा को जो कि final year में है, उस तरह को इनको कह रहा था कि ये करें host. I was just looking at your face and I thought that I'm going to just poke you anyways. Sorry, Nida, I interrupted you. Yeah. Okay, sir, this is most probably the last question. How can a medical undergraduate as well as a newly graduated doctor build his CV, his or her CV for psychiatry? I think आपको basically जो CV है ना आपकी, वही ज़हन में रखें कि when you are a freshly graduate doctor, तो आपकी जो CV होती है वो तो भी बनने के stage के ऊपर है. Nobody is expecting you to have a lot of experience in psychiatry or anything, but basic stuff जो होता है वो आपके interview skills में होता है. वो आपसे सवाल पहला हर जगह के ऊपर जो आप psychiatric training में apply करोगे तो यही होगा, why psychiatry?
and you need to know the answer which is a little bit unique. वो वाला आंसर नहीं जो हर बंदे ने देना है, हाँ जी क्योंकि आई एम अ गुड लिसनर, मुझे लोगों के साथ बातें करके उनके मसले सॉल्व करने का बड़ा शौक है. They have heard it, you know, for decades, the people sitting over there, so they're not interested in it. आपको ये सोचना है कि आपने क्यों साइकेट्री की है, आपने ये नहीं बताना कि उन्होंने बाकी दुनिया ने साइकेट्री क्यों की थी और अब मेरा भी यही आंसर है. सो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो व्हाई यू वांट टू डू साइकेट्री. बाकी सीवी के अंदर आपका जो आपने अपना लिखा हुआ है कि जी मैंने जो जॉब की है, दैट्स फाइन. लुक, honestly speaking, at your stage when you are just coming out of the medical school or you have done a couple of years of house job or other sort of jobs in medicine, it's honestly, I don't expect, I mean it's like asking someone कि जी मैं जो है वो आप अपनी CV दें before you have actually started training to be a plumber या training to be an engineer. How can you have a CV anyways? आपकी CV पे यही होना चाहिए कि जी मेडिकल स्कूल में मैंने ये जो है वो काम किया, उसके बाद हाँ मैंने ABC के अंदर हाउस जॉब की है, और हाँ if you have got for instance some experience of working in a psychiatric ward, you can briefly reflect towards that. But other than that, I do not think so. At least in this country, there is an expectation कि आप जो है वो बहुत बड़े यानी कि साइकेट्रिक फील्ड के सूरमा है, तो आप नो यू आर वन ऑफ द, आप तो कह रहे हो कि मैंने साइकेट्रिस्ट बनना है, अब आगे ट्रेनिंग स्कीम की जिम्मेदारी है कि वो आपको ट्रेन करें, वो आपकी सीवी बनाए. आपकी जिम्मेदारी ये नहीं कि आप सीवी लेके ही उनके पास पहुंच जाए, हाँ जी ये देखो मैं बड़ा अच्छा साइकेट्रिस्ट, तो ट्रेनिंग करने के लिए क्या करने आए हो. ट्रेनिंग का तो मकसद ही है कि यू आर गोइंग टू नाउ स्टार्ट बिल्डिंग योर सीवी. सो सीवी वगैरह के बारे में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वजह है कि जब हमने अप्लाई करना, मुझे याद है मैंने भी शुरू किया था उस जमाने में, आप इंडिविजुअली पोस्ट के लिए अप्लाई करते थे. अब इज अ सेंट्रल सिस्टम ओवर हियर व्हिच इज वेरी गुड. उस जमाने में होता था यू अप्लाई इंडिविजुअली फॉर एवरी पोस्ट. एंड आई रिमेंबर यू नो वी यूज्ड टू हैव दिस ह्यूज सीवी. अब मैं सोचता हूँ कि दैट वाज ऑल नॉनसेंस. देयर वाज नो नीड फॉर इट. यू जस्ट नीड 2 or 3 papers. Just keep it short, keep it simple. Do not go into too much details, because when you write too much details, वो आपसे फिर उनके बारे में पूछना शुरू कर देते हैं. Keep it simple. उनको guess करने दो, उनको सवाल आपसे पूछने दो, and they're gonna ask. Nobody likes, honestly, यहाँ पे CVs आती हैं आपके सामने पड़ी हुई होती हैं. Nobody spends more than probably 30 seconds to a minute at the very most on your CV. Any job in the world you go to, unless and until आप top of the कोई किसी CEO के लिए अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे 4 सिर्फ पोस्ट के लिए बंदे हैं, सबका एक्सपीरियंस 20-20 साल का है, तो वो वहां पे बैठे हुए एक लफ्ज को जो है, यू आर अप्लाइंग एट द फर्स्ट पोस्ट इन द ट्रेनिंग. दे नो, हर बंदे को उनको पता है कि यार क्या मेडिकल स्कूल से निकला है, क्या कर लिया होगा ज्यादा ज्यादा, किसी जगह के ऊपर जाके किसी नर्सिंग होम में, केयर होम में 4 महीने की और जॉब कर ली होगी, इसके अलावा क्या किया होगा. सो दे स्पेंड लिटरली 30 सेकंड्स ऑन योर सीवी, एंड इट्स योर जॉब कि आपने उस 30 सेकंड्स के अंदर अपनी सीवी को जो है ना मेक श्योर करना है कि वो टेबल के ऊपर रहे, टेबल के नीचे ना गिर जाए. बस ये आपका काम है. लेकिन ये कि अब जो है वो, ये मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ट्रेनिंग स्कीम्स जो है वो बड़ी स्ट्रीमलाइंड हो चुकी हुई है. अगर आप साइकेट्री के अंदर काम करना चाहते हैं या आप किसी भी स्पेशलिटी में काम करना चाहते हैं, यू जस्ट कम एंड अप्लाई फॉर इट, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल get into psychiatry. Let me tell you this thing. Right now, especially with the COVID situation and everything, even before that, the things are a little bit different when you are coming to the UK. ज़हन में ये बात रखें कि UK जो है वो अमेरिका नहीं है, ठीक है. America is huge. So your chances, you have done your USMLE, you will get a job in US in the specialty of your choice, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है कि उनको जरूरत ही डॉक्टर्स की बेतहाशा है. बरतानिया जो है वो बेसिकली बहुत छोटा मुल्क है. मैं मतलब आप ये अंदाजा लगा लेंगे टोटल जो यूके है वो गालिबन, ये इंग्लैंड जो है वो मेरे ख्याल में पंजाब जितना होगा साइज के हिसाब से. सो देयर इज यू नो देव गॉट लोकल ग्रेजुएट्स, उनको इतने ज्यादा दे गो थ्रू पीरियड्स के जब यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं फिर कम हो जाती हैं. ओवर द लास्ट 2-3 years 4 years ड्यू टू वेरियस रीजंस, नॉट वन बट मोर देन वन रीजंस, यहाँ पे जो जॉब मार्केट है वो बेसिकली उसमें स्पेसेस हैं. आई नो दैट कि हैं. You know, we are desperately in need of international medical graduates. There was a time maybe 7 years ago जब नहीं था, उनको था कि नहीं हमने तो लेना ही नहीं बंदा बाहर का, we are going to make it so difficult कि कोई अंदर ही ना घुस सके. अब they are asking कि हाँ जी we need the international medical graduates. कोई आपको नजर आए फॉरेन जनाब, ठीक है कोई मसला ही नहीं. I know इस टाइम के ऊपर I think one of you was asking
every 6 months, every 8 months, because I am actually sitting in the panel as well, there are posts, non-training posts कि जी आप जो है कोई बंदा को मिल जाए तो ये तो वो. So you know, it's not hard to get into psychiatry right now if you are interested in it. All you need to do is just make sure that you land over here in time and are ready with your things, you know. That's all. थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया. सर एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि अक्सर साइकाइट्री से रिलेटेड लोग पूछते ही रहते हैं. उसमें से एक बड़ा ये क्वेश्चन होता है कि जो साइकाइट्रिस्ट है उनके तो घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, उनके पास पैसे नहीं होते, साइकाइट्रिस्ट उस तरह वेल पेड नहीं होते. तो व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दिस इशू? तो ये ध्यान में रखें कि यहाँ पे यूके के अंदर, यूएस में जो है वो जाहिर है कि प्राइस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. बट आई नो, एज आई वाज टेलिंग यू, आपको अभी आई नो कि डॉक्टर ज़ीला कयूम, शी वाज 1 year जूनियर टू मी बाय द वे, जो आपकी को प्रेजेंटर है. शी इज कमिंग फ्रॉम द यूएस. आप उनसे भी क्वेश्चन कर सकते हो. अमेरिका के अंदर जो है वो थोड़ा सा प्राइस रखें, मगर साइकियाट्रिस्ट आर वेरी वेल पेड ओवर देयर. वन ऑफ माय ब्रदर इन लॉज, ही इज अ साइकियाट्रिस्ट इन डैलस. वहां पे जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस वगैरह का कॉन्सेप्ट और तरह से एग्जिस्ट करता है. यूके के अंदर ये ज़हन में रखो कि अगर आप एनएचएस कंसल्टेंट हो, तो चाहे आप सर्जरी के अंदर एनएचएस कंसल्टेंट हो, या आप जो है वो ऑर्थोपेडिक्स के अंदर एनएचएस कंसल्टेंट हो, या आप साइकियाट्री के अंदर एनएचएस कंसल्टेंट हो, यू आर गोइंग टू स्टार्ट एट द सेम पे. क्योंकि यू आर वर्किंग इन नेशनल हेल्थ सर्विस, यू आर इफ यू आर अ ईयर 1 कंसल्टेंट, आप सारों की पे एक ही होगी. ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सर्जन है या फिजिशियन है, क्या है. दूसरी चीज, साइकियाट्री के अंदर जो प्राइवेट प्रैक्टिस है वो भी एग्जिस्ट करती है, उसकी अपॉर्चुनिटी. सो यू नो, इफ यू आर, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं कोर्ट्स के लिए, दिस इज अगेन समथिंग व्हिच इज वेरी नीश, नॉट एवरीवन डज इट ओवर हियर. कुछ लोग करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते. मुझे जो है वो शौक हमेशा से था कि मैं थोड़ा सा लॉ साइड, लीगली जो लीगल साइड है उसकी तरफ मेरा इंटरेस्ट साइकियाट्री की हमेशा से रहा था. तो आई लाइक गोइंग इनटू द कोर्ट्स और राइटिंग द रिपोर्ट्स फॉर द लॉयर्स कि जी इस बंदे ने जो अभी, आज भी मैं अभी इस टाइम के ऊपर भी सुबह बैठा हुआ एक खातून की रिपोर्ट जो है वो डिक्टेट कराना चाह रहा था, तो मेरी डिक्टेशन मशीन के बल्कि बैटरी खत्म हो गई. बट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यू गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग प्राइवेट वर्क इन एवरी स्पेशलिटी इन डिफरेंट वेज. कोई डिफरेंस नहीं है, और साइकियाट्री के अंदर कोई यहाँ पे भूखा नहीं मरता. बल्कि इनफैक्ट अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे ख्याल में साइकियाट्री इज अ ग्रेट फील्ड इन द सेंस कि इट गिव्स यू द बेस्ट वर्क लाइफ बैलेंस. आई कैन अश्योर यू कि, एंड आई डिडंट वांट टू मेंशन इट इन द बिगिनिंग, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि आप लोग, हाँ जी साइकियाट्रिस्ट इसलिए बनना चाहिए क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज्यादा है. It offers you the best work-life balance. My wife is a GP. I've got friends in every specialty in this country: surgery, medicine, urology, orthopedics, cardiology. You name it. If you go, if you ask my close friends who are very good friends still from the medical school, they will tell you that, you know, they spend strange hours right now as well. You know, if you are an A&E consultant, aapki kai baar raat ki shift hoti hai, which is fine when you are in your 20s. You don't want to be doing your night shift when you are actually in your mid 40s. You know, you don't want to. Why? Kya main kyun karu, mera nahi dil cha raha. मेरे केस में ये है कि साइकियाट्री के अंदर you've got a 9 to 5 job, and yes, if you want to work after 5 o'clock in your private capacity, you can work, but if you don't want to work, that's your choice. So in my opinion, साइकियाट्री गिव्स यू बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. ये नहीं है कि आप कोई बैठे हुए यानी कि दरख्तों से पैसे उतरने वाला हिसाब किताब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यू अर्न रियली गुड इन द सेंस कि आप अपनी जिंदगी की मेजॉरिटी ख्वाहिशात जो है बड़े आराम से पूरी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह. आई हैव नेवर फेल्ट के जी मैं अगर साइकियाट्रिस्ट के बजाय विद इन ब्रिटेन सर्जन. हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं अमेरिका चला जाता, बिकॉज रिमेंबर दिस थिंग कि द मनी जो डिफरेंस आपको जो नजर आता है वो अमेरिका वर्सेस यूके है. there's a huge amount of money if you are going to US, but that comes at its own price as well. Remember that. यानी कि वहां पे आपको काम करने के लिए you're just working in the same way as you are in Pakistan. जैसे आप पाकिस्तान में डॉक्टर्स को काम करते देखते हैं ना, लॉन्ग आवर्स, inhuman hours, which I call, because I think that it's just unacceptable as far as I'm concerned. मेरे ख्याल में आपका वर्किंग डे जो है वो 8 घंटे से ऊपर होना ही नहीं चाहिए, मैक्सिमम 8 hours.
And my 8 hours, by the way, include things like that as well. This is fun for me. I'm talking with you guys. I'm not working exactly. सिर्फ अभी 2 बजे के करीब यहाँ पे जो यहाँ के 2 o'clock है, मेरी अपने जिसको कहते हैं ट्रेनिंग के साथ जो है वो इसी तरह ही क्या कहते हैं वीडियो लिंक के ऊपर जो है उसकी सुपरविजन है. So these sort of things are coming between from 9 to 5. ये आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी बेहतर मिलती है कि आप अपने बीवी बच्चों के साथ quality time spend कर सकते हैं, and then you can do stuff which you want to do on your own as well. You know, जिसमें आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे या बेगम जो हैं वो आपके साथ हो, आपने जिम जाना है, आपने कुछ इस किस्म का गोल्फ खेलने में. I don't like to play golf, but I'm just saying, you know, you will find that most of the times the doctors who are actually having fun outside after 5 or 6 o'clock, वो उनमें जनरली साइकेट्रिस्ट हैं या जीपीज हैं. बेचारे सर्जन्स और फिजिशियंस जो होते हैं वो अस्पताल में ही बैठे हुए होते हैं क्योंकि उनको लंबी शिफ्टें करनी पड़ती हैं, उनकी ऑन कॉल्स उसी तरह ही होती हैं, बट लंबा सीन होता है, which is fine if you are actually into that. लेकिन ये कि मेरे ख्याल में दोनों चीजें बैलेंस चलनी चाहिए. So I like it this way. I wouldn't change it for anything else. No. Thank you, sir. Work-life balance is a very big thing, sir. क्योंकि ये नेमत से कम नहीं होता, honestly. सर एकदम हम अपने पार्टिसिपेंट से भी पूछ लेते हैं कि कोई भी अगर सर से कोई सवाल करना चाहता है अपना माइक ओपन करके, तो he or she is more than welcome to do so. Sir, I have this question. जैसे आपने बताया था कि ये बहुत मैटर करता है कि why are we choosing psychiatry? तो अगर उसका रीज़न ये हो कि we have suffered from some psychiatric illness, तो इस रीज़न का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे इंटरव्यू पे या अपोजिट पार्टीज को किस तरह से? अच्छा, मेरा जाती तौर पे ख्याल ये है कि जनरली स्पीकिंग पीपल देखें, जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो ना, तो इट्स अ गुड थिंग कि आप अपना बीच में पर्सनल जो है वो साइड लेके आने की. जैसे मैं अपने जब इंटरव्यूज में मेरे से ये सवाल होता था तो आई यूज्ड टू ब्रिंग माय uncle's situation into the question. ठीक है ना, मैं लेके आता था उसको. I have changed from bringing it as a first thing in my reasons to become a psychiatrist to maybe putting it on the 3rd or the 4th list. उसकी वजह ये है कि मैं I do not think कि कोई भी बंदा आपसे ये जी मैं साइकेट्रिस्ट इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मैंने खुद मेंटल हेल्थ इशू सफर किया. इट्स ऑनेस्टली फ्रॉम अ नॉन इंटरव्यू परस्पेक्टिव, अगर हम इंटरव्यू सेटिंग में नहीं है तो मेरे ख्याल में एक बहुत वैलिड रीजन है. मैं आपसे एग्री करता हूँ. लेकिन जब आप इंटरव्यूज में होते हैं ना, तो इंटरव्यू के अंदर जो आपका जॉब का इंटरव्यू होता है वो एक इन इटसेल्फ एक सेपरेट जिसको कहती हैं एक फील्ड है. वो उसका मेडिसिन या साइकेट्री या उस चीज से सेपरेट करके उसको देखा करें कि आपने जो इंटरव्यू, मैंने ऐसे लिखे हैं कैंडिडेट्स के जो जिनकी सीवीज जो होती है ना, वो मतलब आप देखते हो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, बट व्हेन देन दे कम फॉर द इंटरव्यू और आप उनको नहीं चूज कर पाते क्योंकि आपकी अल्टीमेट जो पैनल होता है ना, उसने चूज आपको आपके इंटरव्यू पे करना होता है. अदरवाइज उन्होंने सीवी देख के ही आपको जॉब दे देनी, ठीक है ना. लेकिन अगर उन्होंने 2 जॉब्स के लिए बंदों को रखना है, 10 इंटरव्यू के लिए बंदे बुलाए हुए, तो उसकी वजह है कि दे ऑलरेडी थिंक कि ये 10 बंदे जो हैं वो हमारी नजर में सीवी की बेसिस पे बराबर है. अब इंटरव्यू के अंदर हमने डिसाइड करना है कि हमने करना गया है. तो वो जब इंटरव्यू हो रहा होता है तो उसमें आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप उनको वो रीजंस दें कि जो कि उनको ना उसमें पर्सनल टच नजर आए, मगर पर्सनल टच इतना भी पर्सनल नजर ना आए इमीडिएटली, ठीक है. The other thing which you need to remember is कि अगर आप खुदा ना खास्ता उनको पहले ही जाके भी जी मुझे तो ये साइकेट्रिक इलनेस है, उन्होंने आपको they are going to be accepted if you are applying in psychiatry, क्योंकि उसकी वजह से साइकेट्री इज अ वेरी ओपन फील्ड इन दैट सेंस कि हाँ जी अपने बंदों को चांस जरूर देना चाहिए, और ये जिनको है मेंटल हेल्थ इश्यूज उनके लिए हमारी जो है, बट नॉट एवरीवन थिंक्स दैट वे. ये भी ध्यान में रखा करें क्योंकि उसकी वजह ये है कि you are going into a job interview in front of human beings, और इंसान जो है ना वो हर किस्म का इंटरव्यू पैनल में 7 बंदे बैठे हुए हैं, हो सकता है कि 2 या 3 जो है वो आपकी उस चीज को अच्छा समझे कि यार देखो he or she has suffered from a psychiatric issue, he appreciates it and that has made her or him think कि यार मैंने साइकेट्री करनी है. बाकी के 4 हो सकते हैं वो ये सोच रहे हो कि यार इसको तो खुद साइकेट्रिक इशू है, कल को इसे कोई मसला हो गया तो हम इसको संभालते फिरेंगे, नहीं हमें तो नॉर्मल. So you know these are the sort of things you have to be very careful or tactful around. तो आप जरूर मेंशन करो
लेकिन ये है कि उसको फर्स्ट सेकंड या थर्ड रीजन ना रखो, उसको अपनी वो रखो फोर्थ रीजन। आज जी ठीक है, आई हैव सफर्ड फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज इन माय लाइफ, आई हैव सीन द challenges of someone being a, you know, what challenges or stigma someone with mental health issues go through, and that gives me an extra edge because I've got other qualities as well. लेकिन अपनी बाकी की जो qualities और आपकी जो reasons हैं psychiatry को choose करने की, जो आपको लगता है कि the reasons you are going to be a good psychiatrist, you need to mention them first कि मैं A, B और C हूँ, और by the by ये कि हाँ मुझे जो है वो मैंने mental health issues, या मेरी mother या मेरे father या मेरी खाला, मैं उनके साथ interact कर रही थी तो मुझे इस चीज का idea हुआ कि how, you know, I had that personal connection with the whole thing as well. उसको लेकर जरूर आओ, लेकिन उसको फर्स्ट सेकंड थिंग के तौर पर मत लेकर आए, क्योंकि आपके सामने इंटरव्यू पैनल में एक दो बंदे तो उससे इंप्रेस होंगे, हो सकता है 4 हो जाए, लेकिन कई दफा ये होता है कि बीच में से एक दो बंदे ऐसे जरूर होंगे जो कि उस चीज को पॉइंट आउट करके कहेंगे कि हाँ ठीक है हम इसको दे तो सकते हैं, मगर ये जो दूसरा बंदा बैठा है उसको ये चैलेंजेस नहीं है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। पर्सनली वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे मैंने इशू नहीं देखा साइकेट्री के अंदर, जनरली पीपल आर वेरी अकोमोडेटिव, so you wouldn't have any problems over here in the UK, because they basically want to make it open the field generally for mental health, you know, बाकी की fields भी वो open करना चाह रहे हैं, but more so in psychiatry. I've got trainees who have got mental health. आप मेरे साथ एक ट्रेनी इस टाइम के ऊपर, मैं एक एजुकेशनल सुपरविजन के अंदर एक ऐसा भी ट्रेनी है जिसने पिछले 1 साल से अस्पताल का चक्कर ही नहीं लगाया, उसको कोविड रिलेटेड एंजाइटी है, तो अब उसका ये डिसाइड करना शुरू किया हुआ है कि इसने ट्रेनिंग में तो कंटिन्यू करना है, मगर किस तरह इसको वापस बुलाया जाए। सो दे आर वेरी वेरी अकोमोडेटिव अराउंड दीज सिचुएशंस। लेकिन ये कि फर्स्ट जो आपने हर्डल पास करनी है ना, वो आपका इंटरव्यू के बाद साइकेट्रिक ट्रेनिंग में, वो पहले करो, और उसके बाद बाकी की चीजें जो है दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। Thank you so much, sir. Thank you so much. It means a lot that you gave like 1.5 घंटा आपने दिया, टाइम गुजरने का उस तरह पता भी नहीं लगा। If it helps you, any one of you in any time, it's absolutely fine. You are always welcome. अगर आपको कभी future में कभी जरूरत हो, I told you as well before as well, feel free. You've got my email address over there. अगर किसी को कोई और questions हो तो you know you can always ask. मेरे साथ तो हमेशा यही होता है कि मैं जिस वक्त presentations में बैठा होता हूँ तो मुझे तो questions ही नहीं याद रहते, मैं बाद में मुझे याद आते हैं। So always say if you ever get any of the participants has got any questions which you are unable to ask, or that question develops later on and you want an answer to that, just message me and I will try my level best to be helpful if possible. It would be amazing if you can share your email address or contact details in the chat box. पहले नहीं दिया email address? अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, contact तो तुम्हारे पास है ना मेरा? जी जी हाँ जी। तो मैं आपको पता है क्या करता हूँ, I will just WhatsApp once I finish this, मैं आपको उस पे अपना email address भी जो है ना वो मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, वो नंबर तो तुम्हारे पास है ही, Yoshe. If anyone asks, you can pass that on. I wouldn't mind that. ठीक है सर, थैंक यू सो मच। Let me, when you are actually getting in touch with me on the WhatsApp, just make sure that you actually mention ke, you know, we are coming through reference of Yoshe, and that should be fine. So thank you so much, sir. Thank you so much. It means a lot. No worries at all. Thank you so much, everyone. Best of luck with everything in your life, and hopefully we'll see you at some point in our lives. Take care. Assalamu alaikum. Thank you so much. Jazakallah.